Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing very well in whatever you do. So, in today's reading, we will see. Our main question of the reading is, what is going on in your situation, and what do you know? Okay, what you need to know about it. And I will be for pile selection, I will be using my scented candles that I bought. We will have three groups in this reading, so I will use three of these scented candles. I will add a picture for this for you to choose, and then we will start the reading. Also, that is all. So I will see you at your reading. So, hello, pile 1, welcome to your reading. If you've chosen the rose scented candle, then this is your reading. And we will light this up. There we go. So let's see what is going on in your situation. Pile number 1. We will take 8 cards for that. What is going on in pile number 1 situation? Kalima. What is going on in pile number 1 situation? What is going on in pile number 1's situation? What is going on in pile number 1 situation? Okay, we have 1 card. Okay. What's going on in pile number 1 situation? Okay. What is going on in pile number 1 situation? Just give us 8 cards. Yeah. 4 more, please. What is going on in pile number 1 situation? Thank you. 3 more, please. What is going on in pile number 1's situation? What is okay? 3, 4. 1 more, please. What is going on in pile number 1 situation? What is going on in pile number 1's? Okay. Cards are really falling. I don't know why. Okay, thank you so much. Let's see.
So your first card is the King of Pentacles, the Nine of Wands, the Seven of Swords, the Seven of Pentacles, the Page of Wands, the Page of Swords, the Temperance, and the Hermit. Just before starting your reading, I didn't really say that, but I have purchased this Kali Ma Oracle to really connect to Kali Ma, just to get messages straight from her. So I will be using this deck in this reading, and for you also I want to take a card since I'm getting its energy here, if you like. So let's see what does Kali Ma. Please give us this one card. Such a big deck. Just give me just one card. Okay. This one? Yeah. So for you we have Bhairavi Yogini, card number 21. Yeah, let's keep this here. Okay, so just give me a moment. So your first card is the King of Pentacles, and with the King of Pentacles I feel firstly there is some sort of a darker undertone here in this reading, like I'm actually getting this feeling as if someone here reads dark romance novels. I don't know from where that came through. I don't know, it's words भी नहीं भूल जा रहे. I also feel recently कुछ ऐसा शायद आपके साथ हुआ है, मतलब जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए हैं, और शॉक होने की वजह से आई थिंक जस्ट लाइक थोड़े से फंबल में अभी कर रही थी, तो आई थिंक सेम एनर्जी आपके साथ भी रही है. एंड आई थिंक ये बहुत वेरी रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे आई थिंक you also didn't really know how to react here. आई थिंक मुझे कैसी एनर्जी आ रही है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें आप लाइक स्पीचलेस हो गए. आई एम गेटिंग दैट. या और ये मुझे मोस्टली आई नो रिलेशनशिप के केस में लग रहा है. ये जहाँ पे आई थिंक कुछ तो ऐसे मैजिक या मिरेकल सॉर्ट ऑफ हुआ है आपकी लव लाइफ में, या ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी होने वाला है. तो मुझे एक एनर्जी ऐसी आ रही है, और इट्स लाइक कि ये करवाया जा रहा है, और ये करवाया गया भी है जिनके लिए ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं. क्योंकि ये इट्स लाइक आपके एंसेस्टर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है मुझे. आपके एंसेस्टर्स चाहते थे कि मतलब लाइक ऐसा मुझे लगता है जैसे वो आपको बताना चाहते थे मैजिक, आपको दिखाना चाहते थे दैट मैजिक एग्जिस्ट. मेरा यहाँ पे इस कार्ड में ये स्पार्कल्स टाइप हैं इस कार्ड में. आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, मेरा उस पे ध्यान जा रहा है. आई थिंक वो एक मैजिक बताना चाहते थे,
और काली माँ की तो एनर्जी ऑब्वियसली हम काली ओरेकल ले रहे तो है भी, बट मुझे यहाँ पर इसलिए भी है बिकॉज okay, I'm being drawn to the K in the King of Pentacles written here. And I don't know why am I being called to mention it, but it's like कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही ना मैं ऐसे सोच रही थी कि how amazing is that my name is Kanak and I am drawn to Kali Ma and I also love Krishna ji. Like why am I drawn to only deities with K name? Also Kal Bhairav, and also like I love the color purple, uh, and it's like purple is the color that a lot of people associate with Krishna. So it's like I mean, what am I trying to tell here is that like I'm trying to let the art of synchronicity that actually happens to people. It is not some like कोई जान के चीज़ें कर रहा है या कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है. ये चीज़ें होती हैं और ये इट्स लाइक जब हम नोटिस करते हैं ना इनको, तब ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं. और इनको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जिस वेज हैं जिसके थ्रू स्पिरिट गाइड्स आपको महसूस कराते हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, ये उनका वे है अपना लव, अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करने का. या कोई भी हायर एंटिटी जिसमें आप मानते हैं या जिसमें आप नहीं भी मानते पर वो फिर भी आपकी हेल्प कर रही है, तो ये उनका वे है आपको बताने का कि दे सपोर्ट यू. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास्ट में या आई थिंक नाउ की भी एनर्जी इट्स लाइक आप ना थोड़े से अनग्राउंडेड से हो रखे हैं. मुझे ऐसा लगता है थोड़ी ग्राउंडेड नहीं रही है एनर्जी. आई थिंक वर्क में ज़्यादा एनर्जी गई है एंड उसकी वजह से आई थिंक बर्न आउट हुआ है. आई मीन मतलब काफ़ी ज़्यादा आई थिंक वर्क के चक्कर में आप ज़्यादा ही बर्न आउट फील कर रहे हैं अभी, ऐसा मुझे लग रहा है. आई थिंक पाइल नंबर 1 आप बहुत कोशिश करते हैं. आई थिंक वही कि आप बहुत ट्राई करते हैं कि आप टू बी ऑन फेंस, लाइक टू बी ऑन फेंस विद, मतलब जैसे मैं इसको यूज़ करी हूँ इस फ्रेज़ को यहाँ पे, इसका मतलब है कि आई थिंक आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ को साथ में लेके चलें, बट वो मोस्टली हो पाता है पर कभी कभी नहीं हो पाता है. इट्स लाइक अगर मैं कहूँ 80 to 90, 80%, या आई एम गेटिंग 80 to 90, या 80 to 90% वो चीज़ें होती हैं, बट कभी 10 to 20% वो नहीं होती है. तो आप वो 10 to 20% वाली चीज़ को लेके बैठ जाते हो और फिर उसके ऊपर एक जजमेंट देते हो कि लाइक आई थिंक आप उस 10 to 20% पे ज़्यादा ध्यान देते हो एंड नॉट ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम थिंग्स वर्क फॉर यू. एंड आई थिंक ये अभी आपकी सिचुएशन में हो रहा है कि कि जैसे मैंने कहा कि कुछ मिरेकल्स हुए, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ मिली, कुछ मैजिक हुआ, बट आपका मतलब आपने नोटिस किया तब ठीक है, बट इट्स लाइक बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट एंड जस्ट आपका मोस्टली ध्यान उस पर नहीं रहता है. आप उन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा जाता है जो शायद थोड़ी सी इधर उधर सी हो जाती, थोड़ी डिली डैली हो जाती हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. या मतलब
ओके। क्या आप लोग में से कुछ लोग मुंबई में रहते हैं इन इंडिया? आई मीन ऑब्वियसली मैं इंडिया में रिकॉर्ड कर रही हूँ सिंस मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बट like are you guys really, like, any of you who is watching, do you guys live in Mumbai? I'm getting that message. और एनी वाटर के पास रहने वाली कोई भी जगह है, मतलब जहाँ पे पास में वाटर बॉडी हो एक, एंड लाइक इट इज़ और थोड़ी सी डेवलप्ड सिटी टाइप, मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है। या क्रोन, ओके। या मेरा ध्यान ना क्रोज पे जा रहा है। यहाँ पे क्रोज हैं इस कार्ड में, और क्रोज शनि देव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अगेन एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी मैंने बात करी थी पहले भी। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्फर्मेशन हियर कि क्रोज भी यहाँ पे आए हैं ऐसे। सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। पर यहाँ पे एक और मैसेज ये भी है कि आपको फेदर्स भी दिख रहे हैं क्या? फाइल नंबर 1, अगर आपको दिखते हैं फेदर्स तो उन्हें आप एक्नॉलेज किया करें, लाइक फेदर्स भी साइंस होते हैं जो हमें दिए जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा एक्नॉलेज किया मतलब करना चाहिए आपको, और उनको थोड़ा सा लाइक जस्ट बी ग्रेटफुल for the sign, whatever sign you receive at any point of time, should be grateful for that. Then we have the 7 of Pentacles, and okay, I am getting that message that see, कभी भी हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो वो प्लांट लाइक मैं कैसे समझाऊँ, जैसे मुझे अर्थवॉर्म्स आ रहे हैं, आपको पता होगा, लाइक साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि अर्थवॉर्म्स जो आते हैं वो एक टाइप की इंसेक्ट्स हैं या बींग्स हैं जो ग्राउंड होता है उसके अंदर वो होल्स क्रिएट करते हैं ताकि पेनिट्रेशन हो सके वाटर का थ्रू आउट द रॉक टेबल जो हम लोग का होता है, लाइक सॉइल टेबल, आई थिंक सॉइल टेबल कहते हैं इसको। तो और ये जो होल्स होते हैं ये हेल्प ऑब्वियसली इस चीज़ में तो करते ही हैं कि आपका प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, उसके रूट्स तक पानी जाए। तो इट्स लाइक ऐसी चीज़ें, इट्स लाइक अभी जो मैंने एग्जांपल दी उसको मैं इस चीज़ से भी रिलेट कर सकती हूँ। जैसे हमारी लाइफ में भी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें दूर से ऐसे लगे कि यार ये कुछ हार्म कर सकती है, बट वो नहीं, लाइक उनका इंटेंशन होता है कि वो आके हमें हेल्प करे इन सम वे, एंड वो बहुत ही एक बड़े वे में हेल्प करती है हमें। तो आई थिंक मुझे यही बोलने को कहा जा रहा है आपको कि आप उन चीज़ों को समझे कि कौन क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपके अच्छे के लिए ही हैं, चाहे वो फर्स्ट इंस्टेंस में कितनी ही बुरी लगे या प्रॉब्लमेटिक लगे, बट वो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करने के लिए ही आ रही हैं। कुछ हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों आपकी लाइफ में जो शायद आपको लगे, या लाइक एक बेसिक जजमेंट बहुत सारे लोगों ने कोई पर्सन का बना लिया और आप भी इस चीज़ पे बिलीव करें। बट अगेन मुझे ये एग्जांपल इसलिए भी आ रहा है बिकॉज इट्स लाइक आपको धोखा नहीं खाना है इस चीज़ में कि
कि like, is that person or thing good for me or not? If you feel it is good for you, if your gut feeling says कि yeah, this thing is good, yeah, this person is good, yeah, then go for it. Then yeah, यही मैसेज आ रहा है, आपको इल्यूजन में नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 1, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग, बिकॉज वो आपको बताएगी उन चीज़ों के बारे में भी जहाँ पे शायद वो बाहर से कितनी गलत लगे, पर आपकी इंट्यूशन उन चीज़ों को आपके लिए फ़िल्टर आउट करेगी कि नहीं भाई, ये गलत चीज़ लग रही है पर ये अच्छी है मेरे लिए, तो आई एम नॉट रियली गोइंग टू स्ट्रिप दैट थिंग या पर्सन अवे फ्रॉम माई लाइफ। यस, एंड या मेरा ध्यान जा रहा है अभी इस कैंडल के ऊपर, विच इज़ ऑल्सो लिटिल वाइट, और यहाँ पे भी वाइट लाइट है। आई थिंक आप अगर मेडिटेट करते हैं, और अगर हम नहीं करते तो प्लीज़ मेडिटेट किया करें, क्योंकि इट इज़ ऑल मेडिटेशन करने से हमारी सोल के अंदर जो इल्यूमिनेशन होती है, लाइक हमारी सोल लाइट होती है, मतलब एक, इफ़ आई हैव टू मेक यू ऑल विजुअलाइज, इट्स लाइक हमारी सोल के अंदर बहुत लाइट होती है। यू कैन से मे बी द डिग्री ऑफ वाइट कलर, अगर वो मे बी 10% है अभी आपके सोल के अंदर, ऑल्दो वो 100% होता है, पर कभी हमें लगता है कि नहीं, मे बी मैं इतनी भी प्योर नहीं हूँ, या मे बी आई एम नॉट सो connected to the universe. We always are, but if you feel so if you do meditation, आपको आपकी सोल की सच्चाई पता चलती है। पॉइंट नंबर 1, आपको आपकी सोल की दैट मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ दैट वाइट लाइट दैट कैन बी इन योर सोल, वो आपको पता चलता है। पॉइंट नंबर 1, आपको दिखाई देता है वो। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये आपकी सोल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आई थिंक इमोशंस को और एम्बिशन को आई थिंक बैलेंस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये आ रहा है, या ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, देन वी हैव द हर्मिट कार्ड, एंड दी हर्मिट कार्ड से मुझे लग रहा है जैसे ना एक लॉन्ग जर्नी आपने तय करी है, या मैं ये कहूँगी कि आप एक तो ओल्ड सोल हैं आप, मुझे ऐसा लगता है, और आप यहाँ पे, ये आपका पहला जन्म नहीं है, आप बहुत बार आ चुके हैं, और इस जन्म में आप इस जन्म में आप देखने आए हैं वो कुछ ऐसे सच जो आप से छुपाए गए थे, या आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और वो सारी चीज़ें ना आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ें आई वॉन्ट टू नो, एंड आई वॉन्ट टू असेंड अप टू दिस लेवल, या उससे भी हायर। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, तो आप ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट करवा के आए हैं, और आप यहाँ पे फ्री होने भी आए हैं कुछ ऐसे बिलीफ से जो आई थिंक आपके अंदर रहे हैं बहुत टाइम तक, बट मतलब आपको उनसे फ्रीडम नहीं मिली थी, ऐसा लग रहा था आप उनमें ट्रैप हो गए हैं। और ये इसलिए ये आपकी पास्ट लाइफ में रहा है, या आप कुछ ऐसे बिलीव्स में ट्रैप थे, उनसे फ्री नहीं हो पाए थे, तो इस लाइफ टाइम में आप वो इल्यूमिनेशन देखने आए हैं, अपनी सोल के बारे में जानने आए हैं, असेंड करने आए, और पास्ट लाइफ वाली चीज़ें ख़त्म करने आए। और ये और एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, लाइफ पर्पस वाली चीज़ें आ रही हैं थोड़ी सी, बट एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आप ना यहाँ पे अपनी क्यूरियस सेल्फ को इन सम वे एक्सप्रेस करना है। आई थिंक बहुत लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि चाइल्डहुड में आप शायद आप शायद वो क्यूरियस पर्सन हुआ करते थे, लाइक मैं अर्ली चाइल्डहुड वाली एनर्जी आ रही है, बट ड्यू टू सम रीज़न आई थिंक आप वो चीज़ें नहीं
समझ पाए, या लाइक आई थिंक यू आर नॉट रियली एज मच एक्सप्रेसिव एज यू वर इन योर चाइल्डहुड, एंड उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा आप लाइक आई थिंक मतलब ये एक चीज़ है जो आपके अंदर लैक कर रही है सॉर्ट ऑफ अभी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ कम एंड रियली एक्सप्रेस योर क्यूरियस सेल्फ, लाइक वो दिमाग की जो बत्ती जो हमारी होती है उसको जलाओ, और क्वेश्चंस पूछो। अगर आप कोई भी ऐसे कॉलेज या स्कूल वाली सेटिंग में है तो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए, और हाँ लाइक ये इवन इन जनरल सेंस मुझे ये आ रहा है कि अपने आप के बारे में क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि आप तक वो आंसर्स पहुँचने डेस्टाइंड है, आप तक वो आंसर्स पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और और वो राइट टाइम पर पहुँचेंगे। तो अगर आप वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मतलब अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो आप तक आंसर्स कैसे पहुँचेंगे। जो मैसेज आ रहा है। लास्टली हम ये कार्ड देखेंगे, कार्ड नंबर 21। ओके, एंड जैसे मैंने बोला मुझे एक एंडिंग वाली एनर्जी आई यहाँ पर, एंडिंग वाली एनर्जी आई। हम यहाँ पर बात भी कर रही थी कि आप अपना कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें या ये एक इल्यूजन वाली चीज़ें बाहर हैं, और 21 इज़ द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड टैरो में, तो मुझे वो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी आई। मैं इसके लिए क्या मैं बुक से देख सकती हूँ? मुझे या आई थिंक आई वांट टू रीड दिस कार्ड फ्रॉम द बुक। लेट्स सी। कार्ड नंबर 21, $124. Okay, thank you. So I'm reading this, and if you want I can really add a picture of this so that you all can really read this on your own also. So sublime Bhairavi, fierce with sacred rage, cannot be deceived nor deterred. She is unflinching, fearless and determined. She causes that which is unworthy of the soul to flee and secures divine protection for the authentic soul path. Her presence empowers our hearts to face our fears and signifies that we are ready to overcome anything that has held us back. She gives the power to fulfill our heart's desires and reminds us to embrace a unique path with confidence. मैं एक पार्ट पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे। ओह वाओ, ओके। सो जो मैंने भी पार्ट पढ़ा उसके अंदर यहाँ पे लिखा था कि कैन नॉट बी डिसीव्ड, कैन नॉट बी डेटर्ड, और यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है विच टॉक्स अबाउट लाइक एक इल्यूजन या कोई आपको धोखा दे रहा है। तो अगेन इट्स लाइक काली माँ खुद आकर यहाँ पे बोल रही हैं, और ये कार्ड के थ्रू आपको सपोर्ट कर रही है कि आपको धोखा नहीं मिल सकता है और आपको कोई डिसीव नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लाइक मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे माँ खुद यहाँ पे आके आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर द अमाउंट ऑफ रेड्स इन दिस कार्ड ऑल्सो टॉक कि ग्राउंडिंग वाली एनर्जी। यहाँ पे मैं ये पार्ट भी पढ़ना चाहूँगी। Bhairavi is considered to be the latent energies that exist within the Mooladhara chakra or base chakra. We were talking about the root chakra here, and Mooladhara chakra or base chakra is the root chakra here. So that's the confirmation for you. Point number 1.
This is the foundation upon which body, earthly life, and soul purpose arise in the world. We were also talking about your life purpose, life path here, right? She takes the divine energy from an idea and gives it the capacity to become embodied, to take form. Bhairavi pulls the rug out from beneath us when we're ready for a more powerful connection with the truth. अम, और हमने यहाँ पर बात भी हमने यहाँ पर बात भी करी थी कि आपको अपना सच जान रहे हैं आप, तो इसमें काली माँ आपकी हेल्प कर रही हैं. पॉइंट नंबर 1. Yes, it is from this spiritually stable place that we can move from strength to strength, secure in her love and protection as we manifest our passionate purpose. We were also talking about कि आप अपनी लव लाइफ में कुछ मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या कर चुके हैं. तो this literally talked about manifesting something here. Recognize your inner divine badass and commit to your dreams with conviction. मैं थोड़ा सा और यहाँ पर देखना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए. So this card is the 6th of the Mahavidya wisdom goddesses. She is the wrathful emanation of Kalima and the conqueror of fear. Her name means both formidable and terrifying. Why would we be afraid of our beloved Divine Mother? We can recognize that she is fearsome in the sense of divine magnificence and inspiring awe. Like a force of nature powerful enough to rattle our inflated sense of entitlement and invincibility, she becomes something we can revere because we recognize with relief a power so much greater than the small-minded workings of ego. We can dedicate ourselves to alleviating the suffering we see in the world, if that is what motivates our hearts. Yet we can also take refuge from becoming disheartened by the extent of our task, because we recognize divine greatness and capacity. The entitled mind of a young soul may misinterpret such magnificence as an excuse for apathy. This is why she must be fearsome to such minds. Fear of God is necessary to trigger inner growth until the love of God is enough to motivate our hearts. Bhairavi is divine wrath. She demands that we meet our potential. Potential की भी हमने बात करी थी पॉइंट नंबर 1. There is no playing small when she arises in a reading. Her appearance manifests to give us necessary reminder to step up our spiritual game. Your commitment to the spiritual practices that suit you at this time is strongly encouraged. We were also talking about point number 1 कि आपको meditation करना चाहिए. So this really confirmed here. There are divine forces that will more than match your efforts, and a great deal of progress can be made in a relatively short time frame. If you apply yourself to a task, your progress will unfold more rapidly than you expect. You can accomplish even intimidating prospects if you harness your courage and commit to process. Yeah. So I will add this for you. Anything else? Here. Nope. So that is all for your reading pile number 1. Again, it is a general reading. So take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, or if you just enjoy seeing tarot videos,
So please like, share and subscribe to my YouTube channel, and I shall see you in my next reading. Until then, so hello pile number 2, welcome to your reading, and let's see what is going on in your situation and what do you need to know. And this is what you have chosen for the pile selection. Let's see. Something with the colors today. See, I will light up your candle here. Firstly, yeah. Let's see. Please give us 7 cards, please. Please give us 7 cards. Okay, 1. Actually, I'm being called to say this, so I will. मैं ना अभी बहुत टाइम से मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी. I know there was something off. I mean, yeah, I was busy also with things, but it's like जब मुझे रीडिंग करनी होती है तब मैं टाइम निकाल के मैं बैठ जाती हूँ, बट पिछले लाइक फ्रॉम अ वीक 2 से मैं बैठ नहीं पा रही हूँ. 1 से 2 हफ्तों से मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ. एंड आई डोंट रियली नो कि ऐसा क्यों हुआ था. आई थिंक मे बी तब राइट टाइम नहीं था इस रीडिंग को करने का. और राइट टाइम आज इसलिए भी है क्योंकि मैंने आज ये काली माँ के ओरेकल कार्ड्स मैंने मंगवाए थे और वो आज ही आए हैं. तो मुझे लगा कि हम आज ही रीडिंग करेंगे, और मुझे तो लगता ही है, बट माँ भी यही चाहती थी शायद कि जब ओरेकल कार्ड्स आए तभी हम रीडिंग करेंगे. तो दैट इज़ वाई. ओके, 1 more. थैंक यू. 6 हो गए हैं. Need 1 more card, please. Thank you. एक और लेंगे हम. Okay, let's take 1 more. Thank you so much. Okay, we got 2. He will take both of these. Let's see. So your first card is the Death card, which depicts your current energy. Then we have the 5 of Pentacles. Then we have the Page of Wands. Page of Wands first reading में भी आया था. 9 of Wands, Page of Pentacles, the Strength, the Ace of Swords, and the 5 of Cups. अब बस 9 कार्ड है. 9 नंबर. Okay. Then lastly the 5 of Swords. So firstly with the Death or Rebirth card, I think lately आपने ना कुछ चीज़ें रिलीज़ करी है अपनी लाइफ में, या आई थिंक मतलब मुझे पर्जिंग सुनाई दे रहा है. तो आई थिंक मे बी आपने कुछ शैडो वर्क किया है, कुछ पर्ज किया है. एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शैडो वर्क ऑब्वियसली इज़ वेरी टायरिंग. It is very difficult, it is very heavy. So I am getting that energy here. And यहाँ पे
there is some sort of an appreciation for you. Pile number 2, कि आप कि आपने वो चीज़ें रिलीज़ करी है अपनी लाइफ से, बिकॉज उन चीज़ों को रिलीज़ होना ही था, आज नहीं तो कल। मतलब उनको जाना लिखा ही था, उन चीज़ों का रिलीज़ होना लिखा ही था। एंड सबसे खुशी बात ये कि वो आपने इनिशिएट किया। ऑब्वियसली स्पिरिट गाइड्स एक नज देते हैं, बट आपने उस चीज़ को कैरी आउट किया है, सो देयर इज़ एन अप्रिसिएशन फॉर दैट। एंड या आपने इट्स लाइक आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने रिलीज़ करी, या ये एक ऐसे एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, या ये पूरी जो है चीज़ जो आपने रिलीज़ करी है, ये ये आपकी आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं इतनी एम्बेडेड थी, ये थॉट, ये बिलीफ, कि आप इसके परे अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं शायद अभी भी। या मैं कहूँगी कि ये इतना ज़्यादा इनेट था, इतना ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि पर्सनल था, कि ये सम सॉर्ट ऑफ एक एक ऐसा एक डिसओरिएंटेशन सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रहा था आपके लिए। मतलब जैसे ना मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही जैसे कोई अपने आप को ना देख ही नहीं पा रहा था उस चीज़ के बिना, उस पर्सन के बिना भी। शायद ये कोई पर्सन भी हो सकता है, पर आपने ना अपने आप को आपने जैसे अपने आप को सरेंडर किया, पॉइंट नंबर 1। और वो सरेंडर करने से आपने अपनी जो मतलब जैसे आपने ना अपने आप को एज आई सेड आपने सरेंडर किया, तो उसकी वजह से आपने डायरेक्टली डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ अपना यूनियन करवाया है। और वो यूनियन से आप एक्चुअली में जैसे मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आई एम एक्चुअली गेटिंग दिस विजुअल, जैसे कोई पर्सन का, या कोई पर्सन के ऊपर से, या अंदर से ऐसे एक लाइट जा रही है जो उसको कनेक्ट कर रही है एक बहुत बड़ी चीज़ से, एक यूनिवर्स से। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर ये एक एनर्जी है, और आपने ये करके अपने लिए कुछ पोर्टल्स खोले हैं। पॉइंट नंबर 1 अगेन वो शायद, अच्छा मुझे नहीं बताने को कहा जा रहा है वो पोर्टल्स क्या हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज फॉर यू, सॉर्ट ऑफ, या बट वो पोर्टल्स आपने खोले अपने लिए। पॉइंट नंबर 1 एंड या देयर इज़ एन अपलॉड फॉर दैट, देयर इज़ एन अपलॉड फॉर दैट। मुझे आपकी पास्ट एनर्जी भी आ रही है कि जैसे ना मतलब आपके पास हमेशा से ये एक ऑप्शन रहा है इस चीज़ को, इस चीज़ को फेंकने का अपनी लाइफ से, इस चीज़ को फेंकना मुझे आ रहा है, बट इट्स इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने का। पर शायद कभी आपने ये की जैसे यहाँ पर रखी हुई है, पर आप आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे पास्ट में, और आप खुद ही लॉक हुए पड़े थे। तो जैसे अब यूनिवर्स ने ना आपको बोला कि अब तो यू हैव जस्ट वन चॉइस, यू हैव दिस की, इफ़ यू डोंट रियली यूज़ इट तो आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, और जब आपने रियलाइज़ किया तब फिर आप ऑब्वियसली आपने रिलीज़ करी वो चीज़ें। और मुझे यहाँ पे ना येलो कलर भी आ रहा है, एंड इट्स स्ट्रेंज कि यहाँ पर जो हमने लाइट की है, दिस इज़ अ लेमन ग्रास एंड लेमन इज़ येलो। सो या एक मुझे जैसे आपका ना कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, या यूनिवर्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 एंड ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना कुछ चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है, एक इनिशिएशन उस चीज़ के लिए,
मुझे कोई बहुत ऐसी चीज़ है ना, जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, पाइल नंबर 2, जो आई एम एक्चुअली गेटिंग दिस फीलिंग समथिंग वेरी लार्जर देन लाइफ, very larger than life, very above the things of the mundane, above the things जो आई थिंक दूसरे लोगों के, आई थिंक एक ऐसी चीज़ जो दूसरे लोगों के जजमेंट से परे है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जो दूसरे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, वो उनको समझ आएगी ही नहीं, पर ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। ऐसे मुझे लगता है कि आई थिंक आप कुछ ऐसा रिसीव करने वाले जो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, जो आपकी सोल के लिए बहुत नेसेसरी है। ऐसे मुझे बुलजाए नज़र आ रहा है, जस्ट एग्जैक्टली हिटिंग द मार्क्स। इट्स लाइक यूनिवर्स एग्जैक्टली आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे जो आपको चाहिए। और ये मैं माइंड से नहीं कह रही हूँ, आपका माइंड नहीं चाह रहा है ये चीज़ें। पाइल नंबर 2, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी सोल चाह रही है, जो आप तक डिलीवर होंगी, जो यूनिवर्स करवा रहे हैं यहाँ पे। देन एंड इट्स लाइक वो जो चीज़ जो आ रही है आपके लिए, आप उस जर्नी पर ना चल रही हैं बहुत टाइम से। हाँ, लाइक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ना आप उस पाथ पर चल रहे हैं, और अब आप एक पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे आपको शायद आई थिंक दिखनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी, या आपको चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। जो मैंने जो मैंने बुलजाई की बात करी, एग्जैक्टली रिसीविंग व्हाट यू वांट, अब तक वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। पाइल नंबर 2। एंड देन द स्ट्रेंथ कार्ड। मेरे लिए स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब होता है काली माँ की एनर्जी स्वयं, दुर्गा माता की एनर्जी स्वयं। और जब से मैंने ये टैरो डेक ली है, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम आई सीन दिस कार्ड, ये मेरे लिए वो ही रिप्रेजेंट करता है। और ओके, नाउ एक मैसेज जो मुझे और आ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2। और प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई तो क्रिस्टल ख़रीदना चाहिए। क्रिस्टल, मुझे ब्लैक टर्मलिन आ रहा है दिमाग में, मुझे टाइगर्स आ रहा है दिमाग में, ब्लैक ऑब्सीडियन, या मुझे ये 3 आए दिमाग में। तो ये प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ करना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि जब आप मुझे लगता है आप अपनी शैडो वर्क, जो आई थिंक आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं पाइल नंबर 2, पर आपकी शैडो वर्क में भी अब एक ऐसा फेज़ आया है जहाँ पर आपका जो ऑरिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है ऑन to be attacked by negative energies. Now I don't mean मैं आपको कुछ को डरा नहीं रही हूँ, but it's like कि सी यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट यूनिवर्स ये भी है कि यूनिवर्स ये भी कहते हैं कि वो हमें उन चीज़ों तक पहुँचाएंगे जो हमें उस प्रोटेक्शन को आई वुड से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं पाइल नंबर 2, बट आपको वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक क्रिस्टल ख़रीदना चाहिए। अगर आप क्रिस्टल नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप हिंदू हैं या अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं, क्योंकि मतलब नॉट अ लॉट ऑफ पीपल एसोसिएट विद इट, सो आप दुर्गा कवच कर सकते हैं। आप नहीं, बट मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फीलिंग आ रही है कि आप अगर कोई क्रिस्टल ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते हैं या अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तो
प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आपको लेना है फ्यूचर में ये। सो जस्ट मतलब एक उसको एज अ गोल बनाइए कि ओके मुझे कुछ टाइम में लेना है, तो मे बी लाइक जस्ट अगर कुछ ऐसा फंड्स का इशू है तो थोड़ा सेट असाइड करके उस चीज़ को करने का कीजिए कोशिश, बिकॉज यहाँ पे मुझे नीड लग रही है। वरना मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि लेना ही लेना है, बट यहाँ पे लेना है। या देन हमारे पास 5 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ सॉर्ड्स है। आई थिंक मुझे लगता है आपकी लाइफ में मैक्सिमम टाइम ना पाइल नंबर 2 एक सवेरा नहीं रहा है, जैसे ना एक नई सुबह, मतलब जैसे मुझे यहाँ पे फील है जैसे यहाँ पे रात ही रात चलती आई है, एक डार्कनेस रही है आपकी ज़िंदगी में पाइल नंबर 2। और वो डार्कनेस आप इसलिए आप चाह के भी उसको हटा नहीं पा रहे थे, बट अब ना जैसे एक चेंज आया है, अब ना जैसे एक चेंज आया है, और अब लाइक नई सुबह आई है आपकी जीवन में। एंड यहाँ पर इट्स स्ट्रेंज कि हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, 5 पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आई थिंक ओके 555 इज़ अ नंबर जो आपको शायद ज़्यादा दिखा होगा इन द रीसेंट पास्ट, तो वो इस एनर्जी को कंफर्म कर रहा है यहाँ पर। यस जैसे मुझे लगता है आपने ना मुझे यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे जो भी चीज़ आपने रिलीज़ करी ना, आपने जैसे कबर खोदी, एक जिस या कोई एक कबर खोदी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी, और उसको आप भर के आप उससे वॉक अवे कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ। और आई थिंक ये आपको यहाँ पे एज अ गाइडेंस दे रही है, देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ। अब आपको नहीं जाना है उस राह पर वापस, क्योंकि अब वो आपने डन, इट्स लाइक डन एंड डस्टेड फॉर यू। पॉइंट नंबर 2। देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। Ace of Swords talks about again something reaching you, something, I think an idea, a thought, a, a perspective shift reaching you when you needed it the most. I think ये जो चीज़ मैंने बोली है आपकी रिलीज़ वाली एनर्जी को डिपेक्ट कर रही है कि आपकी सिचुएशन में अभी आप तक जैसे कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट उस अगेन बुल्सआई राइट टाइम पर पहुंचा, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, और अब आप लाइक एस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग्स। सो न्यू बिगिनिंग्स की यहाँ तो एनर्जी है ही, लाइक जो हम सवेरा बोल रहे थे वो सवेरा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फाइल नंबर 2 फॉर्मली वो आ चुका है, बट ऑब्वियसली एनर्जीज़ या यूनिवर्स हमारी जो क्लॉक होती है उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो एक जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करते हैं। तो या दैट इज़ व्हाट आई विल से। एनीथिंग एल्स? Yeah, that is all I am getting for you. File number 2. Again, it is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like my style of reading, please like, share and subscribe to my YouTube channel. And I shall see you in my next reading. Until, take care. Bye bye and see you. So hello, pile number 3, welcome to your reading. So let's see what is going on in your situation. You will take 8 cards. Okay. Strength is your first card. What is going on in pile number 3 situation? I'll flip these cards a bit now.
Okay, take these 3 cards. Yeah. 6. 2 more cards, please. Okay, thank you. 1. That was quick. Pile number 3. Okay, so first card is the Strength card, then we have the Magician, then we have the 10 of Cups, then we have the 2 of Pentacles, the 6 of Pentacles, the Hermit, upright, yeah, the 10 of Swords, and the Hanged Man. Okay, so before starting your reading, मैं ये बताना चाहती कि मैंने ये ऑरिकल परचेज़ किया है, काली मास ऑरिकल, एंड मैं बहुत टाइम से रीडिंग करने की कोशिश कर रही थी. आई थिंक मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है मेरे पास रीडिंग करे हुए, और मैं आज रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो ये काली ऑरिकल आज हम यूज़ करेंगे इस रीडिंग में, और ये ऑरिकल आज ही आया है और मैंने रीडिंग में यूज़ नहीं किया, बट ऐसे मैंने जस्ट ट्राई किया था. सो वी विल पुल अ कार्ड फॉर यू. पाइल नंबर 3. Please give us 1 card. ये इतने बड़े कार्ड्स हैं. एक बार और शफल करूँगी इनको मैं, फिर हम कार्ड लेंगे. यस, सो वी विल टेक दिस फर्स्ट कार्ड एंड आई विल सी दिस एट द एंड ऑफ द रीडिंग. अभी हम इसको यहीं रख देते हैं. सो योर फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी. आई थिंक मैंने बहुत बार ये बोल दिया, नहीं बोला तो मैं फिर से बोल देती हूँ कि मेरे लिए ये एनर्जी, ये सिंस कार्ड इज़ एन एनर्जी, तो ये मेरे लिए डिपिक्ट काली माँ की एनर्जी करता है. सॉरी, या एंड ऑल्सो यू नो काली माँ की एनर्जी तो है ही, बट ये मेरे लिए प्रोटेक्शन भी करता है, डिनोट. और मुझे आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि लाइक यू आर प्रोटेक्टेड. पाइल नंबर 3, यू आर प्रोटेक्टेड, एंड आई थिंक आप अपने लिए प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं. पाइल नंबर 3, आपको पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल एनर्जी भी आ रही है. यहाँ के लोग आई थिंक जानते हैं, आई थिंक आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है. पाइल नंबर 3, एंड आई थिंक हम जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. एंड आप कोई हीलिंग मोडालिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट है कि आपको कुछ करना चाहिए तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप एक हीलर हैं. पाइल नंबर 3, एंड आप में वो एबिलिटीज़ हैं, एंड आपकी सोल का कहीं ना कहीं एक लाइफ पर्पस हीलिंग मोडालिटी से भी जुड़ा हुआ है. या आई थिंक आपकी सोल इज़ मेंट टू रियली डू समथिंग इन द हीलिंग इंडस्ट्री. या और आपने या लाइक मुझे लगता है आप मैजिक में बिलीव करते हैं. पाइल नंबर 3, और मैजिक इज़ समथिंग वो आपके लिए वर्क करता है क्योंकि आप मैजिक के साथ वर्क करते हैं. आप मैजिक को समझते हैं, आप मैजिक को क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में एफर्टलेसली. और जब आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में भी मैजिक आता ही है. 10 ऑफ कप्स है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड.
और यहाँ पे मुझे लव सुनाई दे रहा है, तो आई थिंक आपकी लाइक ओवरऑल आई थिंक आप बहुत ही एक आपकी जो एनर्जी, आपकी जो वाइब्रेशन है अभी, वो लव को अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त। पाइल नंबर 3 लव को अट्रैक्ट करिए, लव। और ये मुझे हाई वाइब्रेशनल लव दिखाई दे रहा है, जैसे कोई अपने यहाँ पे कोई अपने हाईएस्ट वर्जन में टैप इन कर चुका है और उसकी वजह से वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, हाईएस्ट हाई लेवल सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये हो रहा है। एंड आई थिंक आपका सेक्रल चक्रा भी काफ़ी एक्टिव है इस समय, काफ़ी क्रिएटिव आप चीज़ें कर रहे हैं, या आपका वो क्रिएटिव पोटेंशियल काफ़ी बढ़ चुका है। सो या आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आपको करनी भी चाहिए क्रिएटिव चीज़ें, क्योंकि आई थिंक वो आपको बहुत नेचुरली आता है क्रिएटिव चीज़ें। आपकी मुझे ऐसे सुनाई जैसे आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है पॉइंट नंबर 3। तो आपको करना चाहिए कुछ भी क्रिएटिव वर्क। आई थिंक आपके लिए डेली कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव रिचुअल या एनीथिंग जिसको आप क्रिएटिव समझते हैं, जो आपकी समझ में क्रिएटिव है, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाता है और आपको आपकी लाइफ में मैजिक लाता है इन सम वे। एक स्पेस क्रिएट करता है जहाँ मैजिक आपकी लाइफ में एंटर कर पाए। मुझे ना कुछ ये चीज़ें ना फिलैंथ्रोपिक लग रही हैं, जैसे ओके ये भी बोल रही कि ये चीज़ें थोड़ी फिलैंथ्रोपिक भी हो सकती हैं किसी किसी के लिए। तो ऐसी चीज़ें करिए पॉइंट नंबर 3। एंड या यूनिवर्स ना आपको ये मैसेज कंफर्म हो रहा है यहाँ पर, जो मैंने कहा कि है एक हाई लेवल सोल में एक डिवाइन काउंटर पार्ट ये ज़िंदगी में आ रहा है, और वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये आपने वो सब काम किए जो यूनिवर्स ने आपको बोला, आपने वो सब पेन से गो थ्रू किया, उन्हें एक्सपीरियंस किया, जिनसे आपको लेसन सीखने थे। आपने उन्हें फिर हील किया तो ही लेसन लिए। देन आपने औरों को भी हेल्प करी, जहाँ पर आपको, मुझे लगता है बायोमेट्री आपको ना प्लांट किया जाता है लोगों की ज़िंदगी में। तो आपको जहाँ जहाँ भी प्लांट किया गया, आपने वहाँ पर अपना मिशन सक्सेसफुल किया। आपने अपने घर में आपने अपने फैमिली में बहुत लोगों की हेल्प करी इन वेज़ जो मतलब ये यूनिवर्स की नज़र में इवन अ लिटिल हेल्प इज़ हेल्प। ऐसा नहीं कि कोई हेल्प का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी को पैसे दे दो या आप किसी को कुछ टैंजिबल दो। इट्स अबाउट कि या एक एनर्जी का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्लेस पर होना, वो भी एक हेल्प होती है इन एन एनर्जेटिकल सेंस। और आप तो लाइक एनर्जीज़ को आप समझते हैं पॉइंट नंबर 3, तो आपकी एनर्जी ने हेल्प करी है उस सेंस में। So that is what I'm getting here. Then we have the Hermit, 9 number. मुझे कार्ड देखना है अभी। Yeah, I want to see this card, what this is. 26, Shodashi. Okay. It is a bit strange here कि Shodashi, it is the 26 number card guys, और जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है वो 8 नंबर का कार्ड होता है। 26 + 2 = 8, सो 8 नंबर प्रेवलेंट है यहाँ पे। या
एंशंट वाइब आ रही है यहाँ पर, जैसे मुझे रोम ग्रीस जैसी कंट्रीज़ भी सुनाई दे रही है। या तो आपको वो जगह बहुत पसंद होगी पाइल नंबर 3, या आई थिंक यू in some, you somehow feel called to those countries, those places. Yeah, I think you somehow feel called to those places. एंड आई थिंक उन जगहों पे जाना, लाइक ना, जो भी कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे आपको कॉलिंग आती है, यार ये कुछ है जगह, तो आई थिंक आपका वहाँ पर जाना डेस्टाइंड है। पाइल नंबर 3, आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको कॉलिंग हो रही है तो आपको वहाँ जाना होगा एट सम पॉइंट, तभी वो कॉलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि आपका विजन बहुत राइट डायरेक्शन में अभी पाइल नंबर 3, तो आपको वो विजन कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई बहुत सही फोकस के साथ चल रहा है, कोई बहुत सही दिशा में देख रहा है, और किसी में सही बैलेंस है क्रिएटिविटी का और लॉजिक का भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आई थिंक आपका माइंड भी काफ़ी अच्छा चलता है, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़ अच्छी हैं। नंबर 3, या मैं ये कार्ड बुक से देखना चाहूँगी, षोडशी माता का। This 26 number card, right? There we go. Yes, there we go. Okay. So ruby red with the divine juice of life. She nourishes the body, mind and soul with vitalizing pleasure, life and joyfulness. Goddess Shodashi restores self-esteem and awareness of your innate value, especially after a painful rejection or disappointment. Wow, okay. Through her blessings, the desires of the heart can find fulfillment in new ways. And we were talking about you manifesting your higher level soulmate. And look, we have just got that here. She brings divine energy for the manifestation of wishes. Her presence is an indication of inner power to restore yourself and attract what you need to in your life. Shodashi is the fertile and creative aspect of Lalita Tripura Sundari. Red colored skin, vibrant with feminine life force. She is the power to actualize desires in color. In color healing from Hinduism and Buddhism, red is the medicine for attraction and magnetism. The appearance of Shodashi in a reading indicates a time when your ability to attract what you want is heightened. You can be relaxed and trusting in your capacity for magnetically drawing all your desires into your world. In tantric teachings, Kalima, desire is not something to be afraid of, but something that can become a part of our spiritual path. The benefits of developing the character traits required for manifesting desire, such as relaxation, trust, enjoyment, delight, and bliss, as well as discipline, commitment, determination, focus, and a positive attitude, encourage us onward so we don't give up before attaining success. From our successes, we will come to realize that within one desire lies the seed of another. Eventually, the nature of desire is realized as a pathway rather than about the thing sought. The desire nature can motivate us to attain breakthroughs for spiritual benefits of all beings. And we were talking about you know, really helping people. So
Yeah, that really is confirmed here. Shodashi teaches that desire can help us live from the heart, honoring what truly lights up our being and being motivated by our passions. This can be beneficial for the spiritual path rather than a distraction from it. Her heart is compassionate, her spirit, despite her youth, is truly great. She encourages young people with big dreams to believe in their abilities and trust their hearts. She also reminds us that age is not necessarily a signifier of wisdom, nor is youthfulness necessarily an indication of a lack thereof. I will read this part now. Uh, the other one, I think. Agiwala. Yeah, okay. That is all I'm getting with this card. So, yeah, a lot of confirmation for you, pile number 3. I think I've said enough here. Yeah, any other message? So, okay, so that is all for you, pile number 3. Again, it is a general reading. So, take what resonates, leave the rest. And if you like my style of reading or how I read cards, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I shall see you in my next reading. Until then, take care. Bye.